Once again, very good morning, dear students. As you know that we have started the poetry. I have already told you that what is poetry. What is poetry? Be quick. We will recapitulate whatever we have learned yesterday. What is poetry? What is poetry? Very good, very good, very good, very good. What is difference between poetry and prose? I already told you. Very good, very good. I have told you that poetry has deeper meaning. Deeper meaning. Isn't it? Why it has deeper meaning? I have already told you that here we use literary terms. Literary terms और फिगर ऑफ स्पीचेस भी इनको कह रहे हैं. Is it clear to you? What are figure of speeches or literary terms? I already told you that is simile, metaphor, pun, personification. For example, you are lion, you are moon. Is it clear to you? I have already told you that this poetry also is musical. What is meant by musical? Which has rhyme and rhythm. What is meant by rhyme and rhythm? I have told you this. Rhyme means same sounds. Rhythm means same duration, loudness of the sound. Rhythm. Rhyme, for example, for example, pen, band, ten, same sound. And rhythm means loudness. For example, I have already told you, for example, I like you. That is loud, like you. Or I like you. Or I like you. That is sometimes we make the some sound is louder. Sometimes we make some sound is louder. Is it clear? That is called rhythm. That is called. Is it clear to you? It is very. I already told you that if we see physically also the poetry is different from prose. Physically, if we see that in case of prose there is sentence. Here in case of poetry there is no sentence. There is the lines. In case of this poetry there are sentences, but here there is couplet. And in case of prose there is paragraph. Here is stanza. And in case of prose we write capital at the beginning. Come in. At the beginning or after the full stop here, there. Is it clear to you? Is it clear to you? Also, you have to remember that the prose will be the lengthy, but the poetry is very short, and it is known to you that poetry is written in the middle. That is known to you. I will not explain now more. Now today's our main topic is definitions of the poetry. Definitions. Go here. Definitions of poetry. अब आज हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ पोइट्री बाकी लोगों ने क्या पोइट्री के बारे में कहा है, क्योंकि देयर आर ग्रेट पर्सन्स, ग्रेट क्रिटिक्स who have said something about the poetry. The very important definition about the poetry, which I have already discussed it, but I will still discuss, is the definition given by William Wordsworth. Who was the William Wordsworth? He is known to you in the 11th class. You have already read his poem Daffodils. Is it clear? What he has said, he is called the father of the nature, father of the poetry, father of the nature. He likes the nature. He has written the nature poems. Is it clear to you? Daffodils, that is also nature poem. What he says about poetry, we will see his definition. What he says: the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility.
it is not shared by me, it is shared by, and it is a definition taken from the net. Not I have not written this. This is from the Google. Now we will explain what he says. What he says? Feelings and emotions. Feelings and emotions. Actually, there are powerful feelings and emotions. Feelings ही खास जगह. Actually, there are also emotions. Feelings and emotions. I have already told you. Poetry deals with the heart. With our feelings, with our emotions. Prose deals with the mind. With our thoughts, with our ideas. अगर आपको कोई आइडिया आएगा, कोई थॉट आएगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपको वहां क्या है इस्तेमाल करना है? समझ आ रहा है? उस वक्त उसको प्रोज के थे. अब अगर आपको आपके जज्बात, हमें जज्बात भी हैं, इंसान को जज्बात भी है, अगर आपके जज्बात होंगे, वहां कौन इन्वॉल्व होता है? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? वहां आप कंट्रोल दिमाग को नहीं कर रहे. आपने देखा होगा बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, समझ नहीं आ रहा है, कभी इनको कुछ होता है दिल में, इमोशंस वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बेचारे, है ना? आपने देखा होगा बहुत मतलब मौलाना टाइप लोग होते हैं, मिसाल के लिए बहुत अच्छे लोग होते हैं. आपको मालूम है कि शैतान हमारे पीछे है, मगर शैतान हमारे पीछे है, मगर हमें इसको हराना भी है. वो जब हम जाएंगे वो फिर कहेंगे मैंने आपको कब करवाया, मैंने कब किया, आपने तो खुद किया. इसीलिए मतलब यही फर्क है, मैं आपको इससे पहले भी कहा है, यही फर्क है इंसान और एनिमल में. हमें अपने जो इमोशंस और फीलिंग्स है, हमें इनको कंट्रोल करना है. वरना हमें भी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा, साइंस यही कहता है कि मैन इज आल्सो एनिमल बट एट द टॉप एज द क्राउन ऑफ द क्रिएशन, क्योंकि वी कंट्रोल आवर फीलिंग्स एंड इमोशन. जो इनको कंट्रोल करेगा इसी को इंसान कहते हैं. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मगर इमोशंस और फीलिंग्स हैं. अब हम कहेंगे है नहीं, वो तो है, मगर अब इनको कंट्रोल करना होता है. जो कंट्रोल करेगा वो इंसान है, जो नहीं करेगा वो इनह्यूमन है, वो एनिमल है. अब ये कह रहा है फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि पोएट्री डील्स विद फीलिंग्स एंड दे कम फ्रॉम द. इज इट क्लियर टू यू? सो आपको मालूम है, मैंने अभी आपको इससे पहले भी कहा है कि ये पोएट्री क्या होती है? म्यूजिकल. म्यूजिक हमारे कान को ये देता है ना, मतलब ईज देता है, सुकून देता है. इसीलिए इस्लाम में ये मना है, क्योंकि म्यूजिक सुन के हमें बहुत शराब तो पीते हैं, फिर मालूम नहीं है वो क्या करते हैं. इसी तरह जब गाने में इंसान होता है ना, आपने देखा होगा, फिर वहां बूढ़ा होगा, बुजुर्ग होगा, बच्चा होगा, तो सब के सब समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. समझ आ रहा है? क्योंकि वहां हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को. अदरवाइज जो शेक्सपियर है वो कहता है म्यूजिक इज फुल ऑफ लव, म्यूजिक इज फुल ऑफ लव. आपको मैंने इससे पहले भी कहा है लव क्या होता है. लव खाली नेगेटिव सेंस से नहीं देखना है. वी लव गॉड, वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर चिल्ड्रन. हमें तो नजरिया ही चेंज हुआ, क्या करेंगे. अब ये क्या कह रहा है? ये कहता है, अब बोर्ड से क्या सुनेंगे, द सपोर्टेनियस. सपोर्टेनियस मीन्स बाय इट इज ओन, बाय इट इज खुद बा खुद, यानी कि पोइट्री ये खुद ही आ रही है. हर कोई पोइट नहीं बन सकता है. जैसे आपको मैंने कल भी कहा है, आप बाथरूम जाते हैं, फिर आप गाना रेडी करें. एक बार क्या हुआ है, कोई था तो मशारा ऐसा ही था, तो वो आया स्टेज पर, उसने कहा वो आया, बकरी चरी पहाड़ पर. वो क्या करते थे? इरशाद 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 इरशाद. उनको लगा आप कुछ कहेंगे, उसने कहा फिर उतरी. वो तो पोइट्री मत है. मैंने आपको पहले ही कहा है, पोइट्री में डीपर मीनिंग होनी चाहिए, पोइट्री म्यूजिकल होनी चाहिए. आप बात है, हर कोई पोइट नहीं बन सकता है. ये गॉड ने हर किसी को अपना अपना गिफ्ट दिया होता है ना. स्पेसिफिक एक होता है जनरल फैक्टर, एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर. जनरल में आपको भी ठंड लगा, मुझे भी, आपको भी भूख लगी, मुझे भी. स्पेसिफिक में आप में बहुत सारे चाहते हैं हम क्लास नहीं देंगे, बहुत सारे चाहते हैं हम इस वक्त और मैथमेटिक्स क्लास, किसी को पसंद, किसी को पेंटिंग क्लास पसंद है. वो स्पेसिफिक होता है, हर किसी में कोई ना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है. इसी तरह जो ये पोइट्स हैं उनमें ये स्पेसिफिक है. क्या है? हमें कितने सेंसेस हैं? कितने हैं?
फाइव मैंने ही दिखाया है। वो जोक भी मैंने आपको कहा है। एक बार क्या हुआ है, कोई दो दोस्त थे, एक ये ठेले में थे आलू और प्याज। उसने दूसरे दोस्त को कहा अगर आप नहीं, उसके ठेले में थे एग्स, अंडे। उसने दूसरे दोस्त को कहा है अगर आप मुझे कहें कि मेरे ठेले में क्या है, मैं सबके सब अंडे आपको दूंगा। उसने कहा है आपके ठेले में प्याज और आलू है। कहने वाला भी ऐसा है। हाँ, मेरे और कुछ कहना है, यानी कि हाँ सपोर्टिवनेस बाय इट्स ओन, ये खुद ब खुद, ये हर किसी का बात नहीं। अब आप कहेंगे सर क्यों है, क्यों? हाँ, एक्चुअली हमें कितने सेंसेस है? जो ये पॉइंट्स होते हैं उनके 6 सेंसेस होते हैं। कितने? जो 6 सेंसेस उनके हैं वो है इंट्यूशन, इंट्यूशन है इनका। इंट्यूशन को इल्हाम कहते हैं, इल्हाम। इनको इल्हाम आ रहा है। और ये जो इंट्यूशन है हर वक्त इनको नहीं आ रहा है, ये किसी स्पेसिफिक वक्त में इनको आ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने शायद पोइट्री पढ़ी है, कोई पोइम पढ़ी है कोलरिज की। कोलरिज एक पोइट है, उसकी कोई पोइम पढ़ी है आपने? शायद नहीं पढ़ी है, मे बी फ्यूचर में मत पढ़ेंगे। कोलरिज एक पोइट था, वो एक बार एक पोइम लिख रहा था क्यूबला खान। वो बहुत डिफिकल्ट पोइम है क्यूबला खान। उसके दिमाग में आए थे एटलीस्ट 700 लाइन्स। पहले इनको आ रहा है ना क्या करना है, क्या स्ट्रक्चर। फिर उसने पेन उठाया है, अब लिखना था ना, उसने लिखना स्टार्ट किया। लगभग उसने 40 to 50 लाइन्स कंप्लीट की थी, तो नाक हुआ है दरवाजे पर। कोई फ्रेंड उसका आया था, जब वो चला गया था थोड़ा बात ही की, फिर वो आया, भूल ही गया मुझे क्या लिखना था। फिर 75 लाइन्स ही आज वो पोइम है। यानी कि उनको खुद मालूम नहीं होता है ये कब आता है, कैसे आता है। और अब मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, और उनको खुद कभी कभी इसका माना मालूम नहीं होता है। किसी बार ये हुआ, एक पॉइंट को कहा गया है मुझे इसका मीनिंग का हो। उसने कहा अगर मुझे मालूम होता तो मैंने प्रोज में लिखा हुआ होता, क्योंकि मैं आपको कहता पोइट्री में डीपर मीनिंग होती है। समझ आ रहा है? हाँ, यानी कि अब ये क्या कह रहा है, सपोर्टिवनेस मीन्स बाय इट्स ओन, खुद बा किसका क्या है सपोर्टिवनेस? फीलिंग्स एंड इमोशंस, मगर उनका क्या? ओवरफ्लो। समझ आ रहा है? ओवरफ्लो का माने जब सिंटेक्स होती है ना, सिंटेक्स, जब सिंटेक्स, ये मिसाल के लिए सिंटेक्स है, जब पानी यहां से नीचे, अगर हम इसको कंट्रोल करें वो हो सकता है। या जैसे आपको वो घर में चाय होती है, वो किसी पार्ट में होगी, हाँ इसको बंद करो, यहां बैटिंग खराब हो गई है, हो सकता है। उसी तरह जब आपको ये इमोशंस और फीलिंग्स ज्यादा होते हैं ना, फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां दिमाग फिर काम नहीं करता है। आपने देखा होगा जब गुस्सा आता है ना, जब लड़ाई होती है, आपने देखा होगा जब कोई होता है ना, वो मेरी ताकत बहुत कमजोर भी हो गया है, मगर उसको भी अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, है समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और कभी कभी वो अगर वो इलिटरेट होगा, उसने कुछ पढ़ा नहीं होगा, वो इंग्लिश भी कर रहा है उस वक्त, उर्दू भी, फिर कैसे कर रहा है क्या कर रहा है वो अलग बात है, मगर वो एक्चुअली इसको वहां दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका क्या है? समझ आ रहा है? अब बात है सपोर्टेनियस, मगर उनका ओवरफ्लो, आप उनको वो कंट्रोल। हम हो क्या हुआ आपको, आपने किसी को अभी गुस्सा आएगा, हो सर आप हमें क्या पढ़ाते हो, हमें एग्जाम है, श्री कृष्ण को आपको समझ नहीं आ रहा है, हमें अपनी पोएम पढ़ाओ। बाहर के बच्चे हो क्या हुआ, चुप करो, ये सारे हैं, ओ नहीं सारा नहीं, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि यहां माइंड के साथ रिलेशन नहीं होती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, सपोर्टिवनेस, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, क्योंकि ये आम फीलिंग्स नहीं होते हैं, ये पावरफुल फीलिंग्स होते हैं, खतरनाक फीलिंग्स होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, मगर अब बात है रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब आप कहेंगे हाँ, अब आप कहेंगे कि सर जैसे आपको मैंने कहा है, किसी को आप जाए किसी पोइट के पास, हमें कोई पोइम सुनाओ, जैसे मैंने आपको क्या क्या है क्या कहते हैं यहाँ का रसूल मीर की एग्जांपल मैंने दी है आपको। मैंने कहा इसको इम्प्रिजन किया गया है, उसको कहा कि कोई पोइम सुनाओ, उसको मतलब उसको कुछ आया नहीं, तो उन्होंने कहा इसको जेल में रखो। जब इसको जेल में रखा गया है तो 2 दिन 1 दिन फिर वहां से निकाला गया, तो उसने बाहर जब निकला तो उसने कहा है ये रकम तो टैंग बटिन दाई गिदने लो। उन्होंने कहा अब आपने कहा उसने कहा मुझे तो माहौल में बाहर फूलों को देखा है, तो मैंने कहा है
यहां फोर्स नहीं चलता है, फोर्स काम यहां नहीं कर रहा है। इनको इंट्यूशन कभी कभी आ रहा है, समझ आ रहा है। इसी को कहते हैं ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीस, अमन, सुकून। समझ आया यहां तक? समझ आया? समझ आया या नहीं? ये थी डेफिनेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। जल्दी जल्दी में आपने थोड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा थोड़ा। मुझे बहुत कहना था मगर आपकी एग्जाम की नज़ाकत की वजह से मैं ये अब शॉर्टकट करना पड़ रहा है। हाँ, वरना तो मुझे बहुत कहना था, अब मैं उतना नहीं कहूँगा। हाँ, आप एक्चुअली मुझे बाकी की डेफिनेशन भी कहनी है, अब मैं जल्दी में कहूँगा, कोई बात नहीं। कोलरिज जो मैंने अभी आपको कहा है, एक पोइट है, उसने डेफिनेशन क्या की है? उसने कहा पोइट्री इज गुड वर्ड्स इन गुड ऑर्डर। ये गुड वर्ड्स होते हैं, अच्छे वर्ड्स होते हैं, बट इन गुड ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। समझ आ रहा है? ये कोलरिज ने कहा है। और एक है पोइट जिसका नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। उसने क्या कहा है? उसने कहा पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिसाइज मीन तनज करना। आप मुझे तनज करेंगे, सर आपको बाल ही नहीं है, ये सफेद है, वो तनज है। समझ आ रहा है? दूसरा है क्रिटिसिज्म। आप मुझ में देखेंगे अगर बाल भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मगर कपड़े तो है, कम से कम आप ये कहेंगे। क्रिटिसिज्म का माने ये है एनालिसिस करना, मुशाहिदा करना, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यानी कि उसने कहा जो पोइट्री है ये हमें दोनों चीज दिखा रहा है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। समझ आ रहा है? ये किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने है। अब मैं ज्यादा बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, मैं अब क्योंकि मैं आपकी एग्जाम की नजाकत। हाँ, अब आपको और चीज याद रखना है। अब दो इंपॉर्टेंट हम उनको कहेंगे स्कॉलर्स। तो उन्होंने क्या कहा है पोइट्री के बारे में? वो है प्लेटो अरिस्टोटल। प्लेटो एंड अरिस्टोटल, उन्होंने पोइट्री के बारे में क्या कहा है वो हमें थोड़ा पढ़ना है बस। हाँ, प्लेटो जो है ये एक्चुअली, हाँ, आपने अलेक्जेंडर ये क्या कहते हैं इसको, सोक्रेटिस, अफलातून इसका टीचर है, ये इसका टीचर है, और इसका टीचर ये इसका स्टूडेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये अफलातून आपको मालूम है, अफलातून बहुत, मतलब उसने बहुत हर किसी फील्ड में उसने काम की है। हर कहते ना हम इसको, जैसे कि अब अफलातून है, ये बहुत मतलब रिनाउंड स्कॉलर था, हम ये मतलब फिलोसफर था, हर किसी सब्जेक्ट में, मेडिकल, आर्ट्स, आज के जो मतलब बॉटनी, केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट है, हर किसी में उसने काम किया था। हाँ, और इसका स्टूडेंट था प्लेटो का था अरिस्टोटल का था अलेक्जेंडर। और आपको मालूम है कि जब ये थे, ये बीसी की बात है, बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात है। तो आपको मालूम है कि उस वक्त राइटिंग में बातें नहीं हुआ करते थे, उस वक्त ये पेन पेपर्स नहीं थे, उस वक्त ये डायलॉग्स करते थे आपस में, ऐसे ही कहते थे। समझ आ रहा है? तो अब हमें देखना है, ये प्लेटो है, उसने एक बहुत अच्छा कुछ थोड़ा पोइट्री के बारे में कहा है। तो उसने क्या कहा है वो मुझे आपको कहना है। वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो ये प्लेटो है ये अगेंस्ट जा रहा है पोइट्री की, ये उसके खिलाफ जा रहा है। ये कह रहा है कि ये पोइट है, इनको बैनिश करो, इनको बैनिश में जलाई वतन। क्यों? ये कह रहा है कि जो भी ये कह रहे हैं, जो ये पोइट्स कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्लेटो, ये कह रहा है जो भी ये कह रहे हैं, दिस इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। थ्राइस मीन 3 बार। ये कह रहा है कि ये 3 बार जो हकीकत है उससे हकीकत नहीं है। आप कहेंगे सर क्या आप कहने क्या रहा हूं, मैं कहूंगे क्या? ये कह रहा है कि जो पोइट्स कह रहे हैं, मिसाल के लिए आपके वर्ड्सवर्थ ने कहा डैफोडिल्स के बारे में, कहा ना, मगर जो उसने कहा है डैफोडिल्स के बारे में, मेरी बात समझो। पहले जो यहां डैफोडिल्स हैं, जो ये डैफोडिल्स, जो ये एग्जांपल ऐसे दे रहा है,
ये चेयर और टेबल की एग्जांपल दे रहा है। अब ये पहले टेबल और चेयर इसी की समझो कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं जो ये टेबल है या जो ये चेयर है, ये किसी ने बनाई थी ना, किसी आर्टिस्ट ने, किसी कारपेंटर ने। फिर जब उसे बनाई, फिर उसके दिमाग में आया, समझ आ रहा है। अब ये हकीकत में ये नहीं है। मिसाल के लिए मेरे फोटोग्राफर उठाएंगे, वो मेरा फोटो, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा क्या है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। इसी तरह जो ये चेयर है, ये कह रहा है क्योंकि हम भी मतलब हम भी इस पर यकीन करते हैं, तो ये भी आइडियलिस्टिक लोग थे। ये कह रहे हैं कि जो भी ये दुनिया है एक्चुअली ये कॉपी किसकी है, वेरी गुड, जो हकीकी दुनिया है ना, जहां हमें जाना है आफ्टर दिस, जब हमारी डेथ होगी फिर हमें वहीं जाना है ना, जाना है, हाँ वही हकीकी दुनिया है ना। ये कह रहा है कि एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वर्ल्ड। जो ये चेयर है ये हकीकी चेयर, समझ आ रहा है, हकीकी चेयर वहां है। फिर जब आर्टिस्ट अल्लाह ताला ने उसके माइंड में डाला है इस चेयर का कंसेप्ट, फिर उसने बनाया है। फिर आप आर्टिस्ट ने, आप पोइट ने उसी पर कहा है, यानी कि वो, ये और ये, समझ आया, समझ आया। हकीकी दुनिया बनाने वाला और फिर पॉइंट के दिमाग में, तो फिर वो प्रेजेंट कर रहे हैं, समझ आया, समझ आया। उसने कहा इसीलिए ये हकीकत नहीं है। अब उसका जो स्टूडेंट था अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल ने उसे कहा नहीं आप गलत कह रहे हो। ये मतलब हमारे हम टीचर की तरफ नहीं थे। अगर स्टूडेंट को सर आपने गलत कहा, अब खोले, अभी मैं आपको फेल करूंगा, ये हमारी तरफ, मगर आपकी तरफ भी नहीं थी। आप तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करते कभी नहीं। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही कहा है, एजुकेशन ऐसी नहीं है कि मैंने जेब में लाया है, मेरे जेब में एजुकेशन नहीं है, ये मोबाइल फोन है। मैं आपको थोड़ा दूंगा नहीं। एजुकेशन कैसे होती है, मतलब आप क्लास आपने अटेंड किया है, यहां आपको एजुकेशन कैसे मिलेगी, बाय इंफॉर्मेशन। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं किसी चीज के बारे में, वही है एजुकेशन। मगर वो कैसे मिलती है, जब आप क्वेश्चन करेंगे, सर व्हाई इज दिस, सर व्हाट इज दिस, सर हाउ इज दिस, सर व्हेन इज दिस, व्हेन दिस हैज हैपेंड। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपने देखा होगा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। उसको कैसे मालूम होता है, जब वो क्वेश्चन करता है ये फैन क्यों है, उसके 3 ही विंग्स क्यों है, ये ऊपर क्यों है, ये मून क्यों है, ये वहां क्यों है, उसको किसने वहां रखा है, गार्ड ने, गार्ड कौन है, वो क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन की वजह से इसको इंफॉर्मेशन हासिल होती है। आप तो करते नहीं, आपको इंफॉर्मेशन क्या होगी। आपने सुना होगा जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मतलब अगर हम देखेंगे साइंस इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, हाँ वो है, ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। आपने सुना होगा न्यूटन के बारे में सुना है, जिसने क्या दिया है, ग्रेविटेशनल पुल और 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। अगर आप तो वापस है, मुझे और कुछ कहना है। और एक इंपॉर्टेंट उसे दिया ग्रेविटेशनल पुल, ये मैंने ऊपर किया है, ये क्यों कहाँ है, नीचे। अगर आदमी कहूंगा आप कहेंगे सर और कहां जाएगा, नीचे ही आना है। नहीं, मैंने ऊपर किया है तो नीचे क्यों आया है। मैं अगर ऐसे फेंकूंगा, अगर वहां ये बॉल नहीं होता तो ये चले जाएगा। अगर आप मैंने ऊपर फेंका है, नीचे क्यों आया है। ग्रेविटेशनल पुल, ये न्यूटन ने कहा, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है। न्यूटन ने कहा है तो कहा है, उसने कब कहा है आपको मालूम है, कैसे कहा है, कैसे कहा है। एक बार उसने घर में चोरी की थी, अभी जल्दी जल्दी कहूंगा, फिर वो एक गार्डन में चला गया है, एक बाग में, वहां एप्पल का दरख्त था, उसकी तरफ ऐसे गुस्से में बैठा था, वहां से एप्पल फाल हुआ है। जब फाल हुआ है तो उसने कहा ये एप्पल नीचे क्यों आया। अगर आपकी तरफ होता है, घर वालों ने मुझे पीटा, खुदा ने, अल्लाह ने सेब दिया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो उसने ये कंसेप्ट दिया है। हाँ, आपने वो बेंजीन को पढ़ा होगा किसी जगह, ऐसे बेंजीन, ये पढ़ा है आपने, साइंस वाले ने पढ़ा होगा। तो आपको मालूम है इसका स्ट्रक्चर कैसे दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर किसने दिया है, क्रिक्यूल ने आपको मालूम है कैसे दिया है, कैसे, उसने खाद में सांप को देखा है, ऐसे ऐसे, अगर आप देखेंगे वो दुश्मन, हाँ अब क्या हम करेंगे, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, आइंस्टाइन का आपने सुना है, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है, क्या किया है उसने,
जब उसने अपने माँ को देखा था वो एग्स नीचे रखा था हैंड के नीचे, उसने कहा वो तो छोटी है, मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं खुद ही इन पर बैठूंगा। ये क्यूरियोसिटी, यही मुझे मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, यानी कि मैंने इसलिए ये कहा है, जो ये एरिस्टोटल था उसने अपने सर टीचर को कहा है नो यू आर रॉन्ग, यू आर इनकरेक्ट, आई एम अगेंस्ट यू। उसने कहा क्यों? उसने कहा हाँ आप कह रहे हो ये गलत कह रहे हैं, ये मतलब हकीकत नहीं कह रहे हैं, मगर ये ऐसे कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, कोई चीज कैसे होना चाहिए। इसने उसे कहा चलो आप कह रहे हैं ये कुर्सी, उसने ये मतलब कुर्सी के बारे में ये तो हकीकत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने ये देखा है फिर उसके बारे में कहा। मिसाल के लिए जैसे आपने डेफोडिल्स के बारे में पढ़ा है, वर्ड्स का, उसने डेफोडिल्स के बारे में कहा है, मगर कितने सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे। उसने डेफोडिल्स को ही चूज क्यों किया है? क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है। समझ आ रहा है? ये उसे कह रहा है। अब कैसे इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन सुनिए। ये कह रहा है मिसाल के लिए कोई बाग है, मिसाल के लिए कोई बाग है, कोई गार्डन है, कोई गार्डन है। हाँ, ये उसे कह रहा है मिसाल के लिए कोई गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे ट्रीज है ना? समझ आ रहा है? जो ये बहुत सारे ट्रीज है उन पर, जैसे आपने डेफोडिल्स देखा है, उन पर बहुत सारे फ्रूट्स हैं। मिसाल के लिए आप जो ये पॉइंट है, ये किसी पर्टिकुलर ट्री के बारे में कह रहा है, एप्पल ट्री, पाइन ट्री और कोई ट्री, ग्रेप ट्री, वहां किसी पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में कह रहा है, यानी कि उसमें तो वो क्वालिटी होगी जिसके बारे में उसने कहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए ये इसे कह रहा है नहीं, ये पॉइंट्स ये उनकी विजडम होती है, उनकी अक्ल होती है, उनकी दानाई होती है, इसीलिए इनको बैनिश नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो ये उनका कंसेप्ट था। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह से हमने ये डेफिनेशन ऑफ पोइट्री कंप्लीट की है। हाँ, now close. In this way we have completed the definition of the poetry.